Hello friends, let us solve problem number 14 of the textbook. We are given the following information by Vivekanand Charitable Hospital, Latur, and we are required to prepare income and expenditure account for their ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. In this sum also we are given the opening balance sheet. So on the liability side we are having capital fund, bank loan, outstanding bill for drugs. And on the asset side, we are having building, ambulance, stock of drugs, hospital equipments, and cash in hand. And we are given the receipt and payment account. Opening balance is 4,000, subscription is 2,22,000, life membership fees 30,000, and hospital receipts. We are told that they are the revenue receipts, 5,10,400. On the payment side, we are given purchases of drugs, 2 lakh rupees, and in that we are given that it includes 40,000 for their 17-18, and our current year is 18-19. So for last year we have received 40,000. So it may be outstanding of the last year that we have paid. We have paid 40,000 outstanding of the last year. Salary to the staff we have paid 85,000. Honorarium to doctors we have paid 4 lakh. Repairs and maintenance 18,000 we have paid. Furniture we have purchased 45,000. And general expense 16,000 and balance is 2,400. We have 3 adjustments. Stock of drugs at the end of the year is 22,000. Depreciation on building 5% and ambulance 30,000. And life membership fees to be capitalized. So normally life membership fees capitalized is the capital receipt only. So here we are capitalizing. Okay. Then I have done some marking on the drugs because there is a adjustment on the drugs. There is a long there are 3-4 adjustments of the purchase of drugs, because purchase of drugs, outstanding of the last year, then opening stock of the drugs and closing stock of the drugs. So there's a long formula for that. And building and ambulance, we are having the depreciation. For that we are going to write that in the inner column. Okay. So now let us solve the sum. First, let us decide our current year is 18-19 because we are preparing the balance sheet and income and expenditure on the 31st March 2019. So सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? In the books of Vivekanand Charitable Hospital, Latur. उसके बाद हम लिखेंगे heading income and expenditure account for the ended 31st March 2019. उसके बाद हम लिखेंगे balance sheet as on 31st March 2019 और हमारा current year है वो 18-19 है. ओके. तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम में जाएंगे. प्रॉब्लम में सबसे पहले लायबिलिटी साइड को ट्रांसफर करेंगे, बाद में एसेट साइड को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में रिसीट साइड को और पेमेंट साइड को, और उसके बाद में लास्ट में जाके एडजस्टमेंट को. और हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं तो बीच में जो भी आइटम आती है जिसका कोई भी एडजस्टमेंट है तो हम उसको पहले फिनिश करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम कैपिटल फंड ले लेते हैं. 11 लाख इज अ कैपिटल फंड. सो इन आवर बैलेंस शीट वी आर हैविंग अ कैपिटल फंड 11 lakh rupees. Okay. Now our second item is a bank loan 6,50,000. अभी इधर बैंक लोन के बारे में देखना है. कुछ भी हमने पेमेंट नहीं किया है और भी कोई नया लोन नहीं लिया है और हमारे एडजस्टमेंट में भी कुछ भी नहीं है, इसलिए बैंक लोन को हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,50,000. सो बैंक लोन हमने लिख दिया आउटर कॉलम में. तो हमारे 2 आइटम्स हो गए. इधर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग, अभी ड्रग का पूरा करेंगे. सबसे पहले तो इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग है, तो आउटस्टैंडिंग ड्रग्स है, फिर परचेज ऑफ ड्रग्स है, उसमें 40,000 एंड 50 एंड 40 का कंपैरिजन करना है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग है. तो पहले हम क्या करते हैं, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में 2 ड्रग्स कंज्यूम, या तो हम लिखेंगे 2 ड्रग्स यूज. तो सबसे पहले हम 42 ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, बाद में परचेजेस, देन लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, less closing stock. So accordingly, let us transfer first opening stock. So in our opening balance sheet, opening stock is 42,000. So here we'll write 42,000 opening stock of drugs. उसके बाद में हम देखेंगे कि ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट का. उसके बाद में परचेज ऑफ ड्रग्स 2 लाख का परचेज किया आपने, तो हम लिखेंगे 2 लाख का परचेज किया, एड हमने परचेज किया 2 लाख का. उसके बाद में हम देखेंगे कि 50,000 आउटस्टैंडिंग बिल है, मगर उसमें से 40,000 ही आपको मिला है, सॉरी आपने पे किया है.
आउटस्टैंडिंग आपको 50,000 देने का था, आपने 40 पे किया है, तो आप 2 लाख में 40 इंक्लूडेड, तो 40 को माइनस करेंगे, तो आप आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ लास्ट ईयर 40,000 को माइनस करेंगे, तो आपने 40,000 माइनस किया और 50 और 40 का कंपैरिजन किया, तो अभी भी 10,000 आपको देने का बाकी है, तो आपने लिख दिया आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 10,000। कौन सा ईयर? लास्ट ईयर 17-18, तो ये आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ओके, फिर से आपको बताता हूँ कि आपका ओपनिंग स्टॉक 42 लाख था ओपनिंग बैलेंस शीट में, आपने परचेस किया 2 लाख, जो पेमेंट साइड पे दिखा है, तो आपका हो गया टोटल 2,42,000। उसमें से आपने लास्ट ईयर का 50 बाकी था, मगर आपने 40 ही पे किया है अभी। ओके, तो 40 पे किया है, इसलिए आपका अभी कितना हो गया इस साल का? 2,02,000 हो गया, बराबर है। और फिर अभी देखेंगे एडजस्टमेंट में, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग 22,000 है, तो अभी भी अपने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 22,000 आपने माइनस किया, तो आप जब माइनस करेंगे तो आपको टोटल कंजम्पशन ऑफ द ड्रग्स मिलेगा। इस साल का आपका जो टोटल कंजम्पशन है वो 1,80,000 मिलेगा। और इसका हम दूसरा इफेक्ट, ओपनिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में हो गया, परचेस का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हो गया, आउटस्टैंडिंग बिल का ओपनिंग बैलेंस शीट में हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है स्टॉक ऑफ ड्रग्स on 31st March 2019. So everything about the drug is over. एक इफेक्ट हमने इधर कर दिया, दूसरा इफेक्ट भी हमने किया, और इधर पूरा फॉर्मूला हमने बाहर लेके आए। तो ये प्रॉब्लम में ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये 3 आइटम होगी लायबिलिटी साइड पे। इधर बिल्डिंग हमारे पास 10,50,000 है, और उसके बाद में इधर कोई परचेज नहीं है, और उसके बाद में एक एडजस्टमेंट है हमारे पास, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इधर बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखेंगे हम 10,50,000, और उसमें 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 52,500, और दूसरा हमारा इफेक्ट होगा एक्सपेंस साइड में 52,500, और फिर बिल्डिंग को हम आउटर कॉलम में निकालेंगे, तो ये फिगर आएगा हमारा 9,97,500। तो हमने बिल्डिंग के बारे में पूरा किया। अब एम्बुलेंस हमारे पास 4 लाख का है, और इधर हमने कोई एम्बुलेंस परचेज भी नहीं किया, सेल भी नहीं किया, और इधर एक एडजस्टमेंट है हमारा 30,000 डेप्रिसिएशन का। तो हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस हम लिखेंगे 4 लाख रुपया एम्बुलेंस लिखेंगे, और 30,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो 30,000 हम माइनस करते हैं, और दूसरा 30,000 हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो गया बिल्डिंग का और दोनों का मिला के 82,500, और इधर एम्बुलेंस हमारा जो नेट फिगर है वो हो गया 3,70,000। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट में अभी भी क्या बाकी है। स्टॉक ऑफ ड्रग्स हो गया, ये हमने कर लिया। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, ये भी फिक्स एसेट है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इधर कोई इक्विपमेंट्स हमने परचेज नहीं किया है, इधर हमने कुछ भी सेल नहीं किया है, और इधर हमने इक्विपमेंट्स के बारे में हमको कुछ भी नहीं दिया है, तो हम सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स 3,04,000। इसके बाद में हम देखेंगे कैश इन हैंड 4,000, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, सो वी हैव टू इग्नोर बोथ। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 4,000 है, तो रिसीविंग पेमेंट में 4,000 है, दोनों मैच होता है, तो ये हमें इग्नोर करना है। तो हमारा बैलेंस शीट का पूरा ट्रांसफर हो गया। अब हम आएंगे रिसीट साइड पे। स्टार्टिंग का 4,000 का हो गया, हमने इग्नोर किया। अब सब्सक्रिप्शन हम लेंगे 2,22,000, और सब्सक्रिप्शन के बारे में हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो सीधा हम आउटर कॉलम में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 2,22,000। उसके बाद देखते हैं हम लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करना है, और हमको बोला है लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करो, तो हम कैपिटल फंड में अभी ऐड करने वाले हैं लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 को हम ऐड करते हैं। तो ये हो गया, अभी हमारा टोटल कैपिटल हो गया 11,30,000 हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल रिसीट्स उन्होंने बोला है रेवेन्यू रिसीट्स है। ओके, तो रेवेन्यू रिसीट्स है इसलिए वो इनकम है, हम इनकम साइड में लिखेंगे हॉस्पिटल रिसीट्स 5,10,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिसीट साइड हो गया हमारा। अब पेमेंट साइड पे परचेज ऑफ ड्रग का हमने पूरा कर दिया। सैलरी टू स्टाफ 85,000 हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, सैलरी टू स्टाफ 85,000, और उसके बाद में
ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 4 लाख, ये भी हम एक्सप्रेस में बताएंगे। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 4 लाख। उसके बाद हम देखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000, इधर हम देखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000। उसके बाद हम देखेंगे इधर क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर है। तो पहले हमारे पास फर्नीचर नहीं था, अभी डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो ये नया फर्नीचर परचेज किया, तो हम सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर 45,000 इन द बैलेंस शीट। हमने ये नया खरीदा है और उसके बारे में हमको कुछ भी बताया नहीं है। उसके बाद में हमको बोला जनरल एक्सपेंस 16,000, तो हम जनरल एक्सपेंस लिखेंगे। तो एक्सपेंस साइड में हम लिख रहे हैं जनरल एक्सपेंस 16,000, ये हो गया हमारा जनरल एक्सपेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे और पेमेंट साइड में अभी हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, यानी कि क्लोजिंग कैश है वो 2,400 है। सो 2,400 विल राइट क्लोजिंग कैश इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, नाउ लेट अस सी balance sheet we have transferred, receipt and payment account we have transferred, stock of drug is completed, depreciation on building is completed, depreciation on ambulance is completed, membership fees to be capitalized, that also we have completed. So let us move to the sum. Here on the expense side all figures are casted out, on the income side also figures are casted out. If we see the total of the expense side, then the total is 7,81,500. And the total of the income side is 7,32,400. So which total is more? Credit, this debit total is more than the credit total. So expenses are more than the income. So the difference 49,100 is our deficit. So that we have to transfer to the capital fund. So our deficit is 49,100. Okay. Now deficit 49,100 in the capital fund, we are subtracting. So our capital fund is reduced now from 1130 to 10,80,900. And now the capital fund total is, the total of the balance sheet on the liability side is 17,40,900, and the total of the asset side is 17,40,900. So friends, in this sum, the only important point was about the formula of the drugs. Okay, everything is there, opening stock is there, purchase is there, then closing stock is there, outstanding bill is there. Okay, otherwise rest of the items are normal items. So please solve this sum in your book. Okay, and you try to tell it. Okay.